Hello dear students, welcome back to the video classes of Science and Physics. Today I'll be taking video lecture for the class 10th. See, I have already been discussing the chapter chemical reaction and equation, and in the process I have already discussed about what do you mean by chemical reaction and what exactly chemical equation mean. In today's class, more focus will be in formulation of chemical equation and how to balance it, and what are the different types of chemical reaction. In today's lecture, and again after this I'll be holding one more lecture in next two lecture, including today and another one after some time, means a day or two later. The entire syllabus will be done, right? The entire syllabus of this particular chapter will be done, right? So let's begin the topic. I have already said that what is chemical reaction. So whenever there is a change taking place, okay, and then a body or a substance is changing into another substance, this process of change is called reaction. And if it is taking place chemically, then it is a chemical reaction, or if it is taking physically, then we call it a physical reaction. Fine. So what exactly we are discussing is the chemical reaction, right? Chemical reaction. Fine. Now we'll discuss in more detail thing today. Say what happens ki what is chemical equation? First of all, we need to understand what chemical equation is. See, a chemical equation represents a chemical reaction. Actually, equation is what? A representation for the chemical reaction itself, which involves symbols and special letters or characters, which gives more elaborate emphasis on the reaction. It gives detail about the reaction. Let us deal with it with an example. Fine. Let's say there is a statement called zinc reacts with hydrochloric or say sulfuric acid, H2SO4, and while doing so, what it forms is zinc sulfate, ZnSO4. ठीक है, it forms ZnSO4, ठीक है, and then plus H2 गैस. हम इतना सारा कुछ लिखेंगे और कहेंगे कि zinc is reacting with sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas. ठीक है. So see what is happening. This zinc is reactant, this sulfuric acid is reactant, but these two are product, end result. So they are basically what? A product. Okay. So this equation that you formulated out of the statement which I just said is known as chemical equation. You can see now कि zinc has been replaced, the term zinc has been replaced by the symbol associated with the zinc. Similarly, sulfuric acid has a chemical formula that we have written it down instead of chemical name of that sulfuric acid, H2SO4 हमने लिख दिया उसके साथ. ठीक है. सो इस पूरे फेज को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट अ केमिकल इक्वेशन. यस, यू आर वेरी मच राइट, इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन. ठीक है. नाउ दिस पर्टिकुलरली इज अ स्केलेटल. सी, केमिकल इक्वेशन जब हम लोग लिखते हैं तो केमिकल इक्वेशन के दो हिस्से होते हैं. एक होता है उसका स्केलेटल यानी कि ढांचा, राइट, एंड अनदर वन इज योर बैलेंस्ड. ठीक है. अब बैलेंसिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है? बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को इस वजह से बिकॉज वी वांट टू जस्टिफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एंड इफ वी वांट टू जस्टिफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देन व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ द साइड, दैट इज ऑन द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज ऑन द प्रोडक्ट साइड. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिंक एक है, यहाँ पे भी जिंक के एटम एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, अगेन सेम. ठीक है.
यहाँ पे S सल्फर 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। दैट मीन्स दिस केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे इसको अलग से बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे देखो, इस रिएक्शन में अगर हम लोगों को एडेड इन्फॉर्मेशन देनी हो तो हम कैसे इन्फॉर्मेशन देंगे? सबसे पहले तो हम लोगों को एक डेफिनेशन एक बार फिर से समझ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। व्हाट इज़ इट? What is chemical equation? It is a symbolic representation of the chemical reaction, ठीक है, with the help of a symbols and special character associated with that reaction, ठीक है। It is known as chemical what? Equation, right? So अब जैसे एग्जाम्पल, जैसे बैलेंसिंग वाली बात मैं कर रहा था, एक आपके NCERT में देखोगे आपका एक मैग्नीशियम रिबन का एक एक्टिविटी भी है, हम लोग उसी को देख लेते हैं। What happens when a magnesium ribbon is brought in contact to air? So magnesium when reacts with oxygen, ठीक है, क्या बन रहा है आपका? You are forming MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब Mg बेसिकली समझो आप पहले, मैग्नीशियम क्या होता है? 2+, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है? 2-। तो भाई एक एटम मैग्नीशियम के, एक एटम ऑक्सीजन के, दोनों मिल जाएंगे तो आराम से बैलेंस हो गया, ठीक है। लेकिन अब ऑल टुगेदर आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे कि मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन लेकिन 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विथ 2। अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 2, लेकिन साथ में मैग्नीशियम भी 2 हो गए, तो अब यहाँ पे भी 2। अब इसका क्या मतलब है? हम लोगों ने ये क्यों किया? भाई मिनिमम क्वांटिटी होती है किसी भी चीज़ को रिएक्ट करने की, तो स्टेटमेंट को हम ऐसे पढ़ेंगे, व्हेन 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम reacts with 1 mole of oxygen, when 2 mole of magnesium reacts with 1 mole, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 mole है, 1 mole of oxygen to give 2 moles of magnesium oxide, ठीक है। तो वो बर्न करता है एयर। तो इस स्टेटमेंट को हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से दैट मैग्नीशियम इज बर्नड इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए, तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और हमें नीड क्यों पड़ती है बैलेंस करने की? तो बैलेंस करने की नीड इसलिए पड़ती है बिकॉज वी वांट टू जस्टिफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इन ऑर्डर टू justify the law of conservation of mass. And what does that say? It states that and means mass can neither be created nor can it be destroyed. Mass can neither be created nor be destroyed, ठीक है। This is all we have to justify, ठीक है। कोई दिक्कत इसके अंदर? अब देखिए, अब हम लोग बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो हम लोग एक बार समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सी केमिकल रिएक्शन, अब थोड़ा सा क्विक ब्रीफिंग ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन? सी व्हेन अ केमिकल दैट इज परमानेंट चेंज अकर्स, अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। जो फिजिकल चेंज होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, ठीक है, और जो परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट केमिकल चेंज, ठीक है। नाउ केमिकल इक्वेशन क्या है? ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया, बट स्टिल एक बार हम लोग जब इसको गो थ्रू करेंगे तो ये आसानी से हमारा समझ में आ जाएगा। मैंने एग्जांपल्स भी अलग अलग लिए हैं सो दैट कि आपको ज़्यादा एग्जांपल्स का व्यू पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, इक्वेशन इज़ अ सिंपल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन यूजिंग वर्ड्स एंड सिम्बल्स। यहाँ पे चाहो तो जोड़ दो, ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा अगले वीडियोस में, ठीक है, सिंबल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कॉपर रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, तो Cu है, ठीक है। व्हेन Cu रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, ठीक है, इट फॉर्म्स व्हाट? CuO, क्योंकि कॉपर मींस के बेसिकली क्या है? Cu2+ होता है, ऑक्सीजन 2- होता है, तो यहाँ पे एक एक एटम लगेंगे दोनों के, तो देखो यहाँ पे बन गया। लेकिन ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे देखो 2 एटम ऑक्सीजन के, यहाँ पे 1 एटम है, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे कॉपर के आगे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉपर 2 ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी कॉपर 2 और ऑक्सीजन भी 2। नाउ यू कैन से दैट इट इज बैलेंस्ड, फाइन, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। हम लोग को इक्वेशन लिखना कैसे है, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एक एरो डिवाइड करता है आपके रिएक्शन को 2 पार्ट में। वन लेफ्ट हैंड साइड इज़ योर रिएक्टेंट एंड राइट हैंड साइड इज़ योर प्रोडक्ट, ठीक है। एरो का डायरेक्शन इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए, जो एरो होता है,
ठीक है, उसका जो टेल है ये टेल वाला पार्ट है वो रिएक्टेंट को शो कर रहा होता है और हेड वाला जो होता है वो प्रोडक्ट को शो कर रहा होता है। अगर ये चीज़ ऐसे बना होता तो ये रिएक्टेंट हो जाता, ये प्रोडक्ट हो जाता। कई बार आप देखोगे कुछ रिएक्शंस में यूँ लिखे रहते हैं, ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के प्रोसेस है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन रहा है। तो यानी कि पहले केस में जो प्रोडक्ट बना है वो दूसरे केस में प्रोडक्ट जो है दूसरे वाले के लिए रिएक्टेंट का काम कर रहा है ना, तो इसीलिए डायरेक्शन उसका बदल गया है। फाइन, सो इसमें कोई अलग वाली बात नहीं है, सेम थिंग है। फाइन, बस उसको हम लोग अलग से दिखाने के लिए क्या करते हैं, डबल एरो का इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि इट इज डबल डायरेक्शनल, ठीक है, या फिर डुअल डायरेक्शनल रिएक्शन। ठीक है, राइट, क्लियर। नाउ सी, अब एक एक करके हम लोग स्टेप वाइज देखते हैं कि हाउ कैन वी बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। अब देखिए उससे पहले कि अगर इस रिएक्शन में प्लस सिंबल लगे हुए हों, ठीक है, तो जितने भी रिएक्टेंट हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, जितने भी रिएक्टेंट हैं उनको हम प्लस करके जोड़ देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट अगर है तो उसको भी जोड़ करके बताएंगे, एक से अधिक प्रोडक्ट बन रहे हैं तो जोड़ के बताएंगे, रिएक्टेंट अगर एक से अधिक लग रहे हैं तो भी उसको हम जोड़ के बताएंगे। मीन्स उस प्रोसेस के अंदर जितने भी रिएक्टेंट पॉसिबली इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे जितने भी प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, सब के सब लिखे जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द सिंबल व्हाट, प्लस। अब एडेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जैसे मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है भाई, गैस है, तो ब्रैकेट में आप गैस लगा सकते हो। ठीक है, अब H2O क्या है, H2O अगर स्टीम ले रहे हो तो गैस लिख दोगे, H2O अगर वाटर ले रहे हो तो आप लिक्विड लिख दोगे, है ना। तो लाइकवाइज ये सब क्या होते हैं, ये सब जो है सॉलिड अगर लिखना है तो S लिख दोगे। ये सब बताते हैं आपके एडेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दीज आर ऑल एडेड सिंबल्स, एडेड इन्फॉर्मेशन। अगर कहीं पे एरो के ऊपर डेल्टा लगा हो उसका मतलब होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर प्रोडक्ट के साथ में एरो के बाद प्रोडक्ट के साथ में डेल्टा लगा हुआ है यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, देख रहे हो। अब डाउनवर्ड एरो लगा हुआ है यानी कि इट विल बी कलेक्ट हैवियर देन क्या होता है, एयर है, यानी कि वो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से उसको हम लोग इकट्ठा करेंगे। या फिर अगर उसके अंदर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है तो हम लोग पीपीटी बोल देते हैं उसको। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये सब एडेड इन्फॉर्मेशन हम उसके अंदर देते हैं। नाउ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। सो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है, कि एक हम लोग उसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। एक स्लाइड के ऊपर आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ और फिर दोनों को हम लोग एक साथ करने की कोशिश करेंगे। लेट्स से हम लोग मान लेते हैं, जैसे आयरन लिखा हुआ, आयरन से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो एक है हमारे पास Fe, और आयरन को जो हम लोगों ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, ये वाटर जो है ये गैसीय स्टेट में होगा, स्टीम। नॉर्मल वाटर के साथ तो रिएक्ट करना नहीं है उसको, तो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा वो। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बन गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आयरन कितने हैं, एक है। यहाँ पे आयरन कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो पहला काम आपका क्या होगा, आयरन के नंबर लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड में 2 हैं और इस साइड पे आयरन कितने हो गए, 3 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 हैं। तो हाइड्रोजन वाला पार्ट हमारा बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, यानी कि ऑक्सीजन को और आयरन को, इन दो चीज़ों को आपको बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक काम करते हैं। ठीक है, 1 3, ठीक है, 2 2 1 और 4, ये किसके लिए है, ये आयरन के लिए। ये किसके लिए है, ये है हमारा हाइड्रोजन के लिए। ये किसके लिए है, ये हमारा ऑक्सीजन के लिए। तो पहला काम हमारा आयरन को बैलेंस करना, तो हम सबसे पहले इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई जब 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो आयरन बैलेंस हो गया, कर दो, कोई बात नहीं, कर दिया हमने। ठीक है, 3 बैलेंस कर दिया, तो बाकी में कुछ फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब देखो यहाँ पे कि ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे अगर मैं 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, 4 दूनी 8 हो गए। हाइड्रोजन अब कितने हो गए, 8। तो हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे हमारे 8। ठीक है, इधर वाले साइड पे, और इधर वाले साइड पे सॉरी ऑक्सीजन हो गए 4 और हाइड्रोजन हो गए 8। ठीक है, हाइड्रोजन हो गए 8, ऑक्सीजन हो गए 4। ठीक है, तो 4 जो है ऑक्सीजन है वो तो है ही है, हाइड्रोजन 8 हो गए, यहाँ पे 2 हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब जो है, ठीक है, सी द रिएक्शन नाउ बिकम्स व्हाट। ठीक है, अब ये दोबारा से मैं लिख देता हूँ, 3Fe प्लस 4H2O, और ये क्या बना रहा है हमारे पास, Fe3O4 और प्लस 4H2। ठीक है, अब देखो 3 आयरन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4,
ठीक है, 4 दूना 8, ये भी हाइड्रोजन 4 दूनी 8, ठीक है, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4, यानी कि अब ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब सिमिलर कंटेक्स्ट में एक और रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि FeS है, यानी कि फेरस सल्फाइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो FeSO4 और मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा है। तो एक आयरन है, यहाँ पे भी एक आयरन है, सल्फर एक है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर एक है, यानी कि ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। तो ऐसा जो पहले वाले केस में उसको स्केलेटल कहा हमने और उसको हम लोग को ज़रूरत पड़ी बैलेंस करने की, लेकिन इस केस में उसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी कि दोनों के साइड में नंबर ऑफ एटम क्या है, बराबर बराबर है। सो देयर इज़ नो नीड टू बैलेंस इट, ठीक है ना, कोई दिक्कत, राइट। अब देखिए बैलेंसिंग करने में जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसके अंदर 3 स्टेप्स मैंने यूज़ किए, वो 3 स्टेप्स आप लोग कैटेगरिकली उसको थोड़ा सा देख लीजिए। पहला हम लोगों ने क्या किया कि जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आयरन लिखा, हाइड्रोजन लिखा था, ऑक्सीजन लिखा था, यहाँ पे क्या क्या है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सल्फ़र 2 बारी है तो 2 बार नहीं लिखेंगे, बस एक, अब यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ठीक है, तो 2 बारी है, ठीक है, तो 2 इधर, तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड ऐसा लिख देंगे और नंबर को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे एंड 1 बाय 1 हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट वी कैन इजीली फाइंड इट आउट द नंबर ऑफ थिंग्स। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो प्रोसेस बाय प्रोसेस, ये बेसिकली आप ये जान के चलो कि ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, सो आपको टाइम लग सकता है, ठीक है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है आपके रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए अब आप क्या करने वाले हो, अब आप उसके अंदर जैसे और एडेड इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे कि आपने क्या किया कि ये देखिए लास्ट स्टेप में देखो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, तो भाई उसके ब्रैकेट में हमने क्या किया, G पुट कर दिया। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, गैस है, सल्फर क्या है, सॉलिड है, ठीक है, तो ये सॉलिड आ गया, और वाटर है वो क्या है, लिक्विड है। तो ये सब क्या हो गया, एडेड इंफॉर्मेशन आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। सो यहाँ तक हम लोग इसको छोड़ देंगे एंड देन इन द नेक्स्ट सेशन व्हेन वी विल मीट, ठीक है, पॉसिबली इन नेक्स्ट 1 or 2 days, ठीक है, उसमें मैं नहीं चाहता कि मैं आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन का कुछ पार्ट आज बताऊं, कुछ पार्ट कल बताऊं, ठीक है। तो आप बैलेंसिंग से कुछ एक आध क्वेश्चंस जो हैं आप लोग ट्राई करना घर पे खुद से, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको आप पोस्ट करना, आई विल बी मोर हैप्पी टू सॉल्व इट आउट, ठीक है, एंड लेट्स सी हाउ दिस थिंग शेप्स अप। Or there is a in the description box there is my email ID, you can write it down any query that is related to this particular video and this particular chapter, आप मुझे भेजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। और इंस्टेड आप चाहो तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट एज मच एज आई कैन, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब बटन बिकॉज दैट विल गिव यू prompt messages of the video or notification of the videos that I ever post, ठीक है। Thank you and have a nice day.